It's the connectivity which brings people together. पहले होता था कि आप खत लिखते थे, STD फ़ोन कॉल घुमाते थे. Now with video calls, with so many platforms, it's much easier to be connected. AI generated content is very interesting these days, but we feel that it can't really replace a human being right now. But that can be harmful for us in the future. I mean, हाँ, वही again आप actual images versus Photoshop या फिर AI generated images के लिए क्या हम public policies ला रहे हैं? जैसे चाइना में there's a strict watermark which is associated with every AI generated image. We have to sometimes take moderation calls कि कुछ post is getting a lot of negative engagement, then we try to trend it less on our platforms, or even people are spewing a lot of hate speech or even pornographic content, so moderating that becomes a little difficult. People who are kind of sick of using your Instagrams and Facebooks, who kind of want a quality engagement, self-learning modules थोड़े रहें और इंसान को scrolling करने के बाद ये ना लगे कि मैं अपना 15-20 आधा घंटा मैंने waste किया है. I mean, digital space is certainly growing, but that's not a fair way to say that physical presence is absolutely going down. But a lot of it's comparatively less, but Hanji, it has grown down. The thing is also consumers rely very heavily on a personal influencer they follow, उनके reviews, उनके thoughts of a product. नमस्कार, मैं हूँ सौम्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं एकल भारत. आज के इस बदलते दौर में सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आम जिंदगी में हो. तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद है जो कि सोशल मीडिया के एक्सपर्ट है. आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे कुछ सोशल मीडिया के टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके बिजनेस ग्रो करे और आपकी लाइफ इजी हो जाए. आज है हमारे साथ माधव अग्निहोत्री जी. तो बातचीत शुरू करने से पहले उनसे उनके बारे में कुछ जान लेते हैं. सर, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? Sure, thank you Soumya ji for having me. I basically work with a social media startup. It was started by journalists with the idea of having a safe space where people are not inflicted with the usual toxicity that you get on internet. So हमारा basic idea है कि everyone's taught with certain virtues to be nice to each other, to maintain discipline. We believe that sharing sourced, cited information on the internet should be in the list of those virtues. So ये idea, how did this idea come into your mind? Actually, it didn't come to my mind. हमारे company founder CEO का था. They were ex-journalists and they were working. They were trying to build their own digital presence, but वो काफी उनको difficulty लगी. And they thought that a lot of these existing platforms are not doing the right things, basically what they should be doing. Existing platforms मतलब जब आपके Instagram हो गया, Twitter हो गया, Facebook हो गया, they encourage engagement on the expense of आपकी echo chambers create हो जाते हैं. That आपको एक sided information ही दी जाती है. You're not shown the contrasting sides of a story. So इससे क्या होता है, लोगों की जो existing pre-notions होते हैं वो और solidify होते जाते हैं. So that was a big problem that we thought needs to be addressed, and just as the gasoline car was the first iteration and the electric car is the new iteration, we felt that social media kind of needs the same thing. तो how do you deal with that problem? जैसे आपने बोला कि one-sided information मिलता है, तो फिर उससे कैसे, मतलब आप लोग कैसे real information provide करते हैं through social media? We try to make sure कि हम कोई आपके लिए bucketing नहीं कर रहे. We try to expense all the generated content to every user. So we are ensuring कि आप बस scroll ना करते जाएं, आप अपने short dopamine hits ना ले रहे हो, but you are actually trying to learn every side to a story. That is nice, but जैसे we all know कि social media के भी दो sides होते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि social media के positive sides क्या है, positive impact क्या है? It's the connectivity which brings people together. पहले होता था कि आप खत लिखते थे, STD phone call घुमाते थे. Now with video calls, with so many platforms, it's much easier to be connected. But जब हम strangers से interactions करते हैं, वो काफ़ी harmful interactions होती हैं. तो फिर हम वो strangers से interactions को we try to exemplify the positives in that, and थोड़ा हम
we're trying to bridge the gap between this online and physical presence to remind everyone that, you know, behind the screen of a mobile phone, there's an actual person sitting behind that. And you wouldn't say these things that you tend to say on your device on these platforms. So we're trying But to... it is tough to, you know, make people understand that, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ, मैंने कुछ देखा, तो मतलब वो पता नहीं मेरे लिए शायद पॉजिटिव होगा, बट वो ओवरऑल नेगेटिव है कि मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन देख रही हूँ और मैं वो इन्फॉर्मेशन बिलीव करके मेरा थॉट प्रोसेस उस हिसाब से हो गया, बट वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि देयर माइट बी सर्टेन फैक्टर्स वेर यू कैन सी कि सोशल मीडिया का ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप कैसे ये क्लासीफाई करते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है? आपका डिफरेंशिएशन क्या है इसका? जी, वी आर नॉट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ऑल द न्यूज़ विच इज़ रॉन्ग और इनकरेक्ट, बट एटलीस्ट यूज़र्स और पार्टिसिपेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचनी तो चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट फर्स्ट, एंड उसके बाद मॉडरेशन जितना हम रीजनेबली कर पाते हैं वी डू दैट। बट इट्स अगेन कि आपको सारी यू शो द बोथ साइड्स ऑफ अ कॉइन, एंड इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेटली रिलायबली सबको मिल पा रही है कि नहीं। तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता होगा, तो आप लोगों को कैसा रिस्क, कैसा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ये इस चीज़? वी हैव टू समटाइम्स टेक मॉडरेशन कॉल्स कि कुछ पोस्ट is getting a lot of negative engagement, then we try to trend it less on our platforms, or even, you know, people are spewing a lot of hate speech or even pornographic content, so moderating that becomes a little difficult, but we've been successful so far and we haven't had any. So who are your target audience? People who are kind of sick of using your Instagrams and Facebooks, who kind of want a quality engagement, self-learning modules थोड़े रहें, और इंसान को स्क्रॉलिंग करने के बाद ये ना लगे कि मैं अपना 15-20 आधा घंटा मैंने वेस्ट किया है। सो दैट पीपल फील दे हैव लर्नड समथिंग, दे आर देयर इज अ क्वालिटी एंगेजमेंट। जैसे हम अभी सोशल मीडिया के ही टॉपिक में हैं, तो कैन यू टेल मी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक बिजनेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल है? क्योंकि हम सोशल मीडिया में जाते हैं तो हम बहुत टाइम पास करते हैं, रील्स चला लिया, पोस्ट देख लिए, लेकिन मतलब उसमें हम लोग कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं। बट ये भी सच है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। जी। तो आपका क्या कहना है इस पे कि ये कैसे हो सकता है? इंडिया में आप भी देख सकते हैं काफ़ी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आजकल आ रहे हैं, एंड उनके साथ ब्रांड पार्टनरशिप्स बहुत होती हैं, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव चैनल्स टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। सो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो ये आपकी फिजिकल एंड ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी ब्लर होती जाएगी, एंड इट विल सॉर्ट ऑफ गो हैंड इन हैंड। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट इंडिया में डिजिटाइजेशन इतनी हो गई है, बट लेवरेजिंग दैट इफेक्टिवली थोड़ा टाइम लगेगा। सो thoughtful collaboration between all participants कि आप प्रोडक्ट्स थ्रू दीज एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स या फिर अदर चैनल्स आप प्रमोट करें तो बिजनेसेस के लिए भी बेनिफिट रह गई, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रांड वैल्यू यू कैन रियली डिसिपेट मोर देन योर लोकेलिटी। बट ये भी सच है ना कि आजकल ऑफलाइन मार्केटिंग इतना नहीं हो रहा है। मतलब आप देख लो, पहले ज़्यादा था कि बिलबोर्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, होर्डिंग्स आ रहे हैं, बैनर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा था। बट अब आप देखेंगे कि मोस्टली जो भी कंपनी पीआर कर रहे हैं अपना कुछ भी, तो वो मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑफलाइन मार्केटिंग ख़त्म हो रहा है? आपको ऐसा लगता है कि ऑफलाइन मार्केटिंग ख़त्म हो रहा है और डिजिटल मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग, मीडिया, ये सब ज़्यादा चालू हो रहा है? I mean, digital space is certainly growing, but that's not a fair way to say that physical presence is absolutely going down. But a lot of it's comparatively less, but हाँ जी, it has grown down. The thing is also consumers rely very heavily on a personal influencer they follow, उनके reviews, उनके thoughts of a product. They find that very important to them because they somehow feel कि I resonate with this person a lot. क्योंकि इट इज़ ट्रू दैट अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया तो उस प्रोडक्ट का आप देखोगे तो ब्रांड वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इट विल रीच टू अ वेरी हायर लेवल। तो आपको क्या लगता है कि अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं हुआ कोई बिज़नेस का, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है और मेरे बिज़नेस का कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर रही हो, तो आपको क्या लगता है वो बिज़नेस नहीं चलेगा? क्योंकि मतलब मेरे में ऐसा रहेगा कि अच्छा आई डोंट हैव एन इन्फ्लुएंसर हु इज़ प्रमोटिंग माई बिजनेस। दैट अगेन डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर आपका बहुत ही B2C प्रोडक्ट है देन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू एक्सप्लोर, बट अगर आपके बहुत ही नीश सर्विसेज हैं, some sort of computing services, some very complex services that you're trying to provide, उसकी फिर आपकी outreach
स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, देन आई थिंक इट्स अ डिसीजन एवरी पर्सन शुड कंसिडर दीज पॉइंट्स, उसके बाद ये डिसीजन लें। आपने मेंशन किया स्ट्रैटेजी, तो क्या आप मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसे बता सकते हैं जो यूथ को हेल्पफुल होगा to if they want to establish themselves in social media, networking or digital marketing? Certainly. So it's very important to make sure आपका product fit हो रहा है, that it is solving a problem that people have. More importantly, it's solving a problem that you yourself have. That's the best way for a product to start off. And secondly, know your target audience. आपके जिस kind of people you are trying to market the product, it should try to resonate as much with them. And hit and trial रहता है आपका first time, तो obviously it won't go well enough. Right. But everyone should keep a positive mindset to it and keep trying other things, and surely everyone will find some space for themselves. But अब now we are talking about social media, तो ये भी सच है कि social media में जितना हमें exposure मिल रहा है उतना ही उसमें trollers हैं, उतना ही रिस्क है, तो उससे कैसे फेस करें? क्योंकि अगर ट्रोलर्स है हमारे पास, वो हमें कुछ बोल रहे हैं, इफ़ वी आर रेगुलरली सीइंग इट, तो दैट विल काइंड ऑफ डीमोटिवेट अस कि अब नहीं हो रहा है, बंद कर देते हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो हाउ टू डील विद दैट? आई मीन अगेन फिर यूजर्स के बीच में वो थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग दे शुड प्रमोट विद देमसेल्व्स एंड ट्राई टू रियली सी कि इंफॉर्मेशन जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ इज़ दैट एनालिटिकली क्रिटिकली आप अटैक कीजिए उस चीज़ को, डोंट consume everything just for the face value of it. So I think वो promote करना भी is very important, उससे काफ़ी change आएगा. And obviously users का behavior जो online होता है, it's easier said behind a screen than face to a person. तो वो चीज़ भी लोगों को आप जब तक identify करके बताओगे नहीं, तब तक वो चीज़ change लाना भी difficult तो रहेगा. Right. तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड पे है, सब चीज़ का, चाहे आपको कुछ लिखना हो तो AI है, आपको कुछ काम करना हो तो AI है, एवरीवेयर लाइक AI इज़ एवरीवेयर, तो आपको क्या लगता है वो आपके बिजनेस में अफेक्ट कर रहा है AI का होना? Certainly AI generated content is very interesting these days, but we feel that it can't really replace a human being right now. But that can be harmful for us in the future. I mean हाँ, वही again आप एक्चुअल इमेजेस वर्सेस फोटोशॉप या फिर AI जनरेटेड इमेजेस के लिए क्या हम पब्लिक पॉलिसीज़ ला रहे हैं? जैसे चाइना में देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट वाटरमार्क विच इज़ एसोसिएटेड विद एवरी AI जनरेटेड इमेज, सो दैट यूजर्स कैन आइडेंटिफाई कि ये आर्टिफिशियली इसको मैनिपुलेट की गई है कि नहीं. सो आई थिंक अ सिमिलर policy can be implemented, but obviously it's still such a but that is for the entire country ना कि ऐसा कुछ policy आएगा. बट आप जहाँ काम कर रहे हैं, आप मीडिया से नेटवर्क सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, तो उसमें भी AI कैन बी रियली हार्मफुल. तो इज देयर एनी प्लान्स और इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव प्लान्ड कि हम इससे कोप अप ऐसे करेंगे? आई मीन आवर मॉडरेशन इज बेसिकली जस्ट टू सी आप पोर्नोग्राफिक अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे, बट ऑब्वियसली इफ इट इज़ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, हमारी टीम रहती है हु फैक्ट चेक्स ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग पोस्टेड एंड फिर उसकी रेलिवेंट एस्केलेशंस होती हैं टू अ पॉइंट जब हम पोस्ट रिमूव ही कर देते हैं एंड प्रोफाइल पॉइंट्स होते हैं हमारे, वो भी आपके कम कर दिए जाते हैं. तो आपके वो दोनों मेट्रिक्स देखते हुए प्रोफाइल स्कोर आपका बहुत कम है, तो यू कैन टेल दिस पर्सन इज़ नॉट शेयरिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ट्रस्टवर्दी कम है, all these things. Okay. So since आप काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो फिर आप सोशल सर्विस से कैसे जुड़े? आप एकल से कैसे, how are you related to एकल? एकल के काफ़ी initiatives हैं which resonated a lot with me. So एकल on wheels especially, इनके जो buses में skill developments, computer labs करवाते हैं, तो इसके लिए I was able to try some fundraising initiatives जिनके लिए इनको accessories मिल पाए लोगों के लिए. And as much as I can, थोड़े remotely technical abilities, upskilling workshops and all, I've tried to play my part. So how did you come to know about एकल? एकल के मुझे initially Teach for India के बारे में पता था. Then I found out एकल is a even larger organization doing even better, more impactful things. And ये काफ़ी I wasn't really aware of this, but you know how smartly एकल utilizes their funds. There's no wastage, I feel. So I think it's a very good cause which is
doing not just good work, but it is efficiently and distributing all over India also. So you are a youth, ठीक है, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यूथ को कैसे मोटिवेट करेंगे सोशल सर्विस में जुड़ने के लिए? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा यूथ ऐसे इंटरेस्टेड होंगे कि मैं सोशल सर्विस में कुछ करूँ, सोशल सर्विस करूँ, क्योंकि वो सेल्फ इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे टू जॉइन? आई मीन अर्ली 20s लेट टीनेज ईयर्स में तो ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट अलग अलग होते ही हैं, बट एज यू ग्रो इनटू अ लार्जर वेल राउंडेड इंडिविजुअल, खुद से यर्निंग्स तो सबकी आती हैं कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। पूरा गवर्नमेंट सब्सिडीज़ में काफ़ी लोग इंडिया में तो एटलीस्ट ग्रो अप कर रहे हैं। यू हैव a lot of healthcare initiatives which are already being taken care of. So everyone should, I feel that they should start somewhere. अगर आप financially आप provide नहीं कर सकते, आप अपना time provide कर सकते हैं, and it's just about starting somewhere. कि आप हाथ तोड़ के पहले ही चीज़ें ना करें, उससे आपकी कंसिस्टेंसी में फ़र्क पड़ेगा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट समवेयर। ये थे हमारे साथ माधव अग्निहोत्री जी। सर थैंक यू हमारे साथ आज बने रहने के लिए यहाँ पे और हमें टाइम देने के लिए। और इन्होंने हमें बताया कि सोशल मीडिया के रिस्क क्या है, सोशल मीडिया में कैसे आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, और साथ ही इन्होंने हमें बताया कि यूथ होने के साथ साथ आप समाज निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही और पर्सनालिटीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एकल भारत।